Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Oh, yeah. Just tell me brief about The it. screen visible? Yes, sir. So, okay, in the last lecture, we have discussed about the method of undetermined coefficients, in which we have discussed that if we have any equation of a type y double dash plus p times y dash plus q times y is equal to be r of ax, its general solution is being given by the y, which is equal to be a yg plus the yp. Case 1 is that if Rx is of the form e raised to power ax, then our particular solution should be in the form of a yp, which is equal to be a times e raised to power ax. And if this yp is already being existing up in a yg, in that case, the solution will be start from the yp is equal to be a into the x into e power ax. Similarly, in the case number 2, if Rx is of the form sine bx or the cos of a bx, in that case, we have a yp should be in the form of a times sine bx plus b times cosine bx. And case number 3, we have said that if Rx is of the form e raised to power a times e raised to power ax into sine bx or e raised to power ax cosine bx, in that case, the yp will be supposed like e raised to power ax into a times sine bx plus b times a cosine of bx is there. And then the case number 4 we have to be discussed up now. We should be go with that here. If Rx is of a polynomial of the form a naught plus a1x plus a2x square plus so on an into the x power n, where the an is non-zero. In that case, the supposition of a yp will be go like a naught plus a1x plus a2x square plus so on an x power n. So find the y dash p, y double dash p, substitute in the given differential equation, find the values of all these undetermined coefficients. Okay. And if there is no term containing y in the given differential equation of order 2, that is the equation is of type y double dash plus p times y dash is equal to be a naught plus a1x plus so on an x power n. In that case, the solution, the particular solution, the yp will be supposed as a multiple of ax. So x into the a naught plus a1x plus so on an x power the n is there. And similarly, if there is a no term containing a y and y dash in the given differential equation, that is, we have the equation is of type y double dash is equal to be a naught plus a1x plus so on an into the x power n. Then the simple method is do the integration both sides, variable separable technique. So do the integration, means you have to be solved it by the direct integration. So these are the 4 techniques that you have to be followed up for solving up the given differential equation when the right hand side is a non-zero, and we should apply up. So now, yeah, any query, we have some message in chat box. Yes, no voice. Is it audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Sir, sir. Bhaiya, ye audible. Is it not audible to the all? Sir, audible. Sir, Or some people are being audible? Yes, sir. It means that some students have some problem out there. I think it is being audible to the Sir, others. the audible. So we have
It's audible. Okay, thank you. Sir, it's audible, sir. So then we are going to discuss some numerical problems based upon this technique now. Okay. So I am discussing a numerical problem now. Just see out. Yes, we have some messages are there. Okay, case number 1 and case number 2 I'm repeating up again. केस नंबर 1 में फिर देख लीजिए हमने क्या डिस्कशन किया था. अगर केस नंबर 1 हमारे पास था कि अगर हमारे पास rx जो है वो e पावर ax है राइट हैंड साइड में, तो इन दैट केस द पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी डिस्कस्ड बाय a टाइम्स e पावर द ax. ओके, अगर ये yp हमारे पास जो है ऑलरेडी yg के अंदर है, तो हमने एक डिस्कशन किया था अगर yp जो है ऑलरेडी yg के अंदर है, so in that case yp will be supposed as a into x into e power the ax. तो वो x का मल्टीपल आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन जो है वो कर ली थी लास्ट टाइम. तो सिमिलरली फॉर द अदर ऑल पार्ट्स, अगर तो yp जो है वो ऑलरेडी yg के अंदर है, तो इन दैट केस इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ ax. या कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू जो है वो नहीं निकल पा रही है, तो इन दैट केस यू हैव टू बी मल्टीप्लाइड इट विद द x. Okay, so thank you. So now we will discuss some numerical problems based upon this thing. तो हम numerical problem discussion करने जा रहा हूँ. Suppose that the question is solve, find the general solution of a given differential equation y double dash minus of 2 times y dash plus y is equal to be 6 times e power x. तो पहला काम क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ जनरल सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका. तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? मींस वी हैव टू बी इस वाले पार्ट को जीरो इक्वेट कर देंगे. तो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू बी 0. मींस इस होमोजेनियस इक्वेशन का टर्म जनरल सॉल्यूशन निकालना है. तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? सपोज ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो सपोज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है इसका वो क्या सपोज करेंगे? y इज इक्वल टू बी e पावर mx. तो इसका सॉल्यूशन हम सपोज कर लेंगे y इज इक्वल टू बी e पावर mx. अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दैट केस इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. कैसे आ गया? तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका सॉल्यूशन जो है y डैश निकालिए, y डबल डैश निकालिए एंड सब्स्टिट्यूट इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो क्या आ जाएगा ये? Sir, you are not audible. सर माइक बंद है. Sir, can you show case? Sir, can you show the case 1 and case 2? सर माइक बंद है आपका. Sir, you are not audible. Sir, you are on mute.
Sir, you're on mute. यार मैं उठा था सुबह से। Sir, you are not audible. सर अगर सर माइक ऑफ है। Yes, sir. Sorry, my mic is already being mute up. तो yg जो है हमारे पास जो है वो c1 plus c2x into e power x है, तो which is equal to be c1 into e power x plus c2x into the e power x. तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये c1 into e power x जो है वो ऑलरेडी इस पार्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो yp जो है इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ x. अगर मैं मल्टीपल ऑफ x करता हूं तो मल्टीपल ऑफ x भी ऑलरेडी yg के अंदर है। तो व्हाट इज माय yp? तो yp जो है मेरा स्टार्ट होगा a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर x। फिर देख लीजिए सोल्यूशन, अगर मैं yp इज इक्वल टू बी a इंटू ई पावर x सोल्यूशन मानता हूं तो ये ऑलरेडी yg के अंदर इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है। और अगर मैं yp को नेक्स्ट पार्ट a इंटू एक्स इंटू ई पावर x सोल्यूशन मानता हूं तो वो भी ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है yg के अंदर, तो इसका मतलब ये भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। अगर आप मान लेंगे तो आपके पास कैपिटल A की वैल्यू जो है वो नहीं निकल पाएगी। तो yp मेरा कहां से स्टार्ट होगा? तो yp मेरा जो स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा, yp इज इक्वल टू बी a इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर द x। तो ये मेरा लेट yp इज इक्वल टू बी दिस इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या करेंगे, हम y डैश निकालेंगे, y डबल डैश निकालेंगे एंड सब्स्टिट्यूट अप इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। फाइंड द y डैश p एंड y डबल डैश p एंड सब्स्टिट्यूट अप इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या आएगा y डैश p? Yes, we have a y dash p. Find the y dash p, which is equal to be a into x square into e power x plus 2 times a into x into e power x. Find the y double dash p. So y double dash p becomes equal to be a into the x square into e power x plus e power x into the 2x plus we have a into 2x into e power x plus 2 times e power x. So substitute up these values of a yp and y double dash p and yp in the equation number 1. तो हमारे पास equation number 1 क्या है? If you see out the equation number 1, अगर हम equation number 1 जो है वो देखते हैं तो we have our equation is like a, हमारे पास फॉर्मेशन है y double dash p minus 2 times y dash p plus yp is equal to be 6 times e raised to power x. So substitute the value of a y dash p, y double dash p and the yp. So substitute yp, y dash p and y double dash p, ठीक है। इन सबकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? If you further simplify it out, you will found that after simplification I am writing up the terms now. ये आप खुद देखिएगा कैसे होगा, ठीक है। तो after simplification the equation will be like a 2 times a into e power x is equal to be 6 times e power x out there. Now equating the coefficients, of e power x on both sides, दोनों साइड्स पे e पावर x के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकाल लीजिए। सो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू बी 3, 2a इज इक्वल टू बी 6 आ जाएगा और a की वैल्यू 3 आ जाएगी। इट मींस दैट द yp whatever we supposed up, the yp is equal to be 3 times x square into e power x। तो ये हमारे पास yp आ गया। और अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करूं इक्वेशन नंबर 1 की, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? which is equal to be y, which is equal to be yg plus the yp। तो yg आपने ऑलरेडी निकाल रखा था, दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। we have a c1 plus c2x into e power x plus
3x square into e power x. So this is our final solution. Yeah. Any query? Any doubt? Sir, could you please Okay. explain this question So I'm again? doing up a next numerical problem here. Excuse me, दूसरा sir. problem जो है हम discussion करते हैं. Any query you can be ask me up in this case if you have any doubt. Excuse me, sir. If you have any doubt, any query in this case, you can ask me This up. Question again. No? Okay. So can In you that repeat case, this I'm moving to question? the next problem. सर पूरा कराओ. Okay, the next problem is like we have Sir, to please simplify repeat this question. So, any इन sir, चारों please cases में से repeat कोई this एक case ले question. लेते हैं बोल such तो that रहे we doubt. can understand other things. Say the question here Sir, is. can you please repeat? Sir, can you please repeat this question? We talked about Repeat the question. फिर देख लो मैंने क्या किया. मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ. हमारे Sir? पास इक्वेशन थी y डबल डैश माइनस Sir? 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू बी 6 टाइम्स e Sir? raised to power x. सबसे पहले तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है होमोजेनियस फॉर्म का. तो वो निकालने के लिए आप yg निकालेंगे. सर तो इसका yg निकालने के लिए आपने Sir? सॉल्यूशन पोस्ट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 2 का ये है. इक्वेशन जो है आपकी m की फॉर्म में बन जाएगी. m जो है रिपीटेड रूट है, तो रिपीटेड रूट आपके पास ये आ गया. Sir? उसके बाद आपने yp निकालना है. सर तो yp निकालने के लिए आपकी अब सपोजिशन स्टार्ट होगी कि हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो क्या है. अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है, राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वी हैव टू बी चेक इट आउट दैट थिंग कि हमारे पास वो क्या है. वो है एक्सपोनेंशियल टर्म है. तो अगर वो एक्सपोनेंशियल टर्म है तो एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो क्या है. वी हैव टू बी चेक इट आउट. उसके बाद हमारे पास जो सपोजिशन yp की वो a टाइम्स पावर x रहेगी. पुजारी पर हमने देखा है कि a टाइम्स हेवी ड्राइवर निकले. पोजीशन आएगी x के मल्टीपल वाली. पर x का मल्टीपल ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो इसका मतलब ये अरे आवाज नहीं आ रही. x स्क्वायर इनटू e पावर x. नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही. इसके बाद तो सिंपल काम है. y डैश p निकालिए, y डबल डैश p निकालिए और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a. नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट सर जी सुन लो y डबल डैश minus 4 times y dash is equal to be 25x square plus 12 will be there. अब सबसे पहले again you have to be solve the homogeneous equation and find the general solution equation for the homogeneous equation. तो सबसे पहले मैं homogeneous equation लिखूंगा. तो y double, suppose this is equation number 1. minus 4 times the y dash is equal to be 0 is equation number 2. सर सुन लो. तो सबसे पहले हम इसको सिंपलीफाई करते हैं. सॉल्यूशन निकालते हैं. इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए y is equal to be e power रिकॉर्डेड लेक्चर है. ठीक है. पता नहीं. अगर y is equal to be e power mx है तो इसका मतलब इक्वेशन बन जाएगी m square minus 4m is equal to be 0. तो अगर मैं इसके रूट्स देखता हूं तो m into m minus 4 is equal to be 0. So it implies that either the m is equal to be 0 सर or आप रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए क्या? मतलब yg हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है रिकॉर्डेड लेक्चर रिकॉर्डिंग ऑन है. रिकॉर्डिंग का वो क्या आ गया c1 into e power 0x plus c2 into e power 4x because the roots are real and different. So the answer is c1 plus c2 times e power 4x. तो ये हमारे पास जो है जनरल सॉल्यूशन निकल आया. ठीक है. So now we have to be find the particular solution. अब हमने जो है particular solution निकालना है. So we have to be find the particular solution. मैं लिखने वाला सर इग्नोरिंग अस. तो particular solution निकालने के लिए क्या करेंगे. अभी हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो फॉर्म है वो पॉलिनोमियल की फॉर्म है. ठीक है. जो राइट हैंड साइड पे जो फॉर्म है वो हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म है. अब अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की फॉर्म है तो पॉलिनोमियल के लिए वी हैव टू बी रिकंसिडर द टाइप. तो टाइप हमारे पास, तो अभी हमें जो उसकी जो टाइप है वो कंसिडर आउट करनी पड़ेगी. तो मैंने अभी केस यहाँ पे डिस्कशन किया था कि अगर y वाली टर्म इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. अगर y वाली टर्म हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है तो व्हाट टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ yp. तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो yp की जो वैल्यू है
to find a yp. अगर मुझे yp निकालना है तो yp की सपोजिशन कैसे स्टार्ट होनी चाहिए? दैट बेस्ड अपॉन द राइट हैंड साइड पार्ट, तो विच इज इक्वल टू बी, अब ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल के लिए द इक्वेशन विल बी लाइक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए, ठीक है। पर यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, केस बताया था कि अगर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे y वाली टर्म इंक्लूडेड नहीं है तो हमारे पास yp की जो सपोजिशन है ये रॉन्ग है, ठीक है। बट सिंस देयर इज no term of y on the left hand side of the given differential equation, so our actual choice of p, actual choice of particular solution will be, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो चॉइस होगी दैट विल बी yp which is equal to b, yp which is equal to b. अब क्या करेंगे, इसी का x के साथ मल्टीपल ले लेंगे, we have to be multiplied this term with the x, so we have a x into ax square plus bx plus c. Okay, I think again some students are complaining that I am not audible. Again, I am not hearing your voice again. I think there is some technical error. I will check it out. Please hold on. Okay, please wait. On my side, I am checking my speaker and microphone. I am listening up. Yes. Is it audible now? Yes. Yeah, thank you. Yes. Yeah. Yes, sir. Yeah. Thank you. So, okay, so we have to be suppose the particular solution here will be x into the ax square plus bx plus c, because here I have again told you that because the y term is not being included up in a given differential equation, so the particular solution is equal to be x multiple is there. So again work is what we have to do. अब ये जो हमारे पास yp आया है, we have to be find the y dash p, y double dash p, and substitute up in the given differential equation and find the value of a, b and c. ठीक है, तो यहां से क्या निकालेंगे, we have to be find y dash p, y dash p, y double dash p and the yp in equation number 1. So substitute up all the values and comparing up the coefficients. So now I'm writing up the final term, whatever you're getting up. So we have a minus 12a times x square plus 6a minus the 8b into the x after simplification plus 2b minus the 4c is equal to be 25x square plus 12. So now this is the value that you obtained up. Hello. Yes. So can you please repeat this question? There was a lot of disturbance while you were telling. Okay, no problem. तो मैं फिर से शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को. So the question here is solve a differential equation y double dash minus 4 times the y dash is equal to be 25x square plus 12. ये इक्वेशन है, ठीक है. तुमने क्या बोला, सबसे पहले आपने इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेनी है और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लेना है. तो होमोजेनियस लेने के लिए हमने इसको इक्वेट किया लेफ्ट हैंड पार्ट को 0 के, और इसका सॉल्यूशन फिर वही पार्ट से कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स लेते हुए इसका सॉल्यूशन निकाल लिया. यहां तक क्लियर है, yg तक, बिकॉज वी हैव अ
real and different roots, so we get the solution is c1 plus c2 into e power 4x. Okay, अब केस बना to find the value of a yp, कि अब हमने yp की वैल्यू को निकालना है. अब yp जो है it depends upon the right hand side part. ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है. इसका मतलब yp जो सपोज होना चाहिए, हाँ मैं कर रहा हूँ, आई विल जस्ट रिपीटिंग इट आउट. तो yp की वैल्यू जो है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. बट हमने यहाँ पे रूल में बताया था अभी कि अगर आपके पास यहाँ पे y वाली जो टर्म है वो इंक्लूड नहीं है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपका जो सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट होगा x के मल्टीपल के साथ, एक पावर बढ़ जाएगी. ठीक है, तो yp जो है वो स्टार्ट होगा x इंटू द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है, तो आप यहाँ पे y डैश निकालिए, y डबल डैश p निकालिए और yp निकालिए और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. उसके बाद कंपेयरिंग ए कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x square, x and constant. इन टर्म्स को इक्वेट कीजिए, तो वी गेट द वैल्यू फॉर द a, b and c. तो वी गेट द -12a is equal to be 25, 6a minus the 8b is equal to be 0, plus 2 comma another equation is the 2b minus 4c is equal to be 12. To simplify up these three equations to find the value of a capital A, capital B and capital C. So we get that the value of a capital A is minus 25 by 12. The value of a capital B is the minus 25 by 16. And the value of a C is equal to be minus 121 over 32. So substitute the value for A, B, C in the value of a YP. So YP is equal to be X into minus 25 by 12 into x square minus 25 by 16 into x minus 121 over the 32. So this is your particular solution, and the complete solution or a general solution is y, which is equal to be yg plus the yp. So write the value for yg as well as the yp to get the complete solution. So write the value of yg as well as the yp to get the complete solution. So we should write up the values of the final solution. So we have yg is c1 plus c2 into e power the 4x, plus we have x into minus 25 by 12 into x square minus 25 by 16 into x minus 121 by 32. So we get the final answer is here. So this is the way we can be simplify the equations. Given differential equation having up this form is there. Okay. Any query? Yes. Any query? Any doubt? Okay. थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना. ऊपर. Is it okay? सर उसको थोड़ा ऊपर. थोड़ा ऊपर. ठीक है. सर हमने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया था उसको बाय पी को? ये हमारे पास ना रूल है इन दैट केस कि अगर हमारे पास यहाँ पे ना y वाली टर्म इंक्लूडेड नहीं है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमारा जो ये yp है, तो yp शुड बी अ मल्टीपल ऑफ x, बिकॉज इस केस में क्या होता है कि एक डिग्री जो है वो बढ़ जाएगी. ठीक है, दिस इज रूल. ठीक है, अगर हमारे पास, क्योंकि हमारे पास केसेस क्या है कि अगर हमारे पास ना कोफिशिएंट्स नहीं होंगे तो हम इक्वेट नहीं कर पाएंगे. तो अगर इस केस में ये जो y वाला जो पार्ट है अगर वो 0 हो जाता है तो q वाला पार्ट जो है हमारे पास खत्म हो जाता है इन दैट केस. तो उस केस में जब हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स करते हैं तो हमारे पास जो ये कांस्टेंट्स की जो वैल्यू है वो नहीं आ पाएंगी. तो उस केस के लिए इसकी जो पावर को हमें एक बढ़ाना पड़ता है. ठीक है, तो उस केस के लिए वी गेट अप द रिक्वायर्ड रिजल्ट.
दिस इज Yes, sir. लॉजिक। अगर इन दैट केस अगर y डैश और y वाली दोनों की दोनों टर्म जीरो हो जाती हैं, मींस नहीं लिखी जाती, तो फिर तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा सकते हो उस केस में। क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें इन कोई रूल्स, क्लास नहीं ला रहा है, पता नहीं क्या क्या हो गया? So now I'm discussing about another problem. So the question is here, solve y double dash plus the y dash is equal to be e power minus x plus the x. अब यहाँ पे हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो क्वेश्चन है उसमें अब एक्सपोनेंशियल टर्म भी है और पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे? तो इस केस के लिए आपको दोनों रूल्स जो है वो फॉलो आउट करने पड़ेंगे, एक्सपोनेंशियल वाला भी और पॉलिनोमियल वाला भी। तो सबसे पहला काम क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को निकालना, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो हमारे पास क्या है? y डबल डैश प्लस द y डैश इज इक्वल टू बी 0, और फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू बी 0। तो दिस इंप्लाइज दैट m की वैल्यू क्या आ जाएगी? विच इज 0, -1। तो yg क्या बन जाएगा यहाँ पे? c1 इंटू ई पावर द 0x प्लस c2 इंटू ई पावर द -x, which is equal to be c1 plus c2 e power -x. And now let me know कि what should be the yp now, कि yp क्या होना चाहिए अब इसका? Yes, anybody from the group? What should be the yp? अब देखिए आपका rx जो है वो ये पार्ट है। अब आपका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो है e पावर -x प्लस x। What should be a yp? What the assumption of a yp will be there? क्या होनी चाहिए? Yes. Yes. Anybody? No. Yes. Anybody from the group? यहीं पे छोड़ देंगे. In that case, we will discuss up the next one problem in the next class. Sir. Yes. ये अच्छा 12:10 तक लेक्चर अभी हमारा, थोड़ी okay, we have 10 minutes more. Yes. Sir, e to the power minus x into ax square plus bx plus c. Yes. Here अगर आप देखिए अब आपके पास यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, ठीक है। पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसकी assumption जाएगी लाइक ax plus b टाइप, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल की सपोजिशन जाएगी a इंटू द ई पावर द x। अब यहाँ पे yp की जो सपोजिशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए a इंटू ई पावर माइनस x प्लस bx प्लस c, ठीक है। पर अगर आप इस पार्ट को देखें, ये वाला पार्ट e पावर माइनस x, तो e पावर माइनस x जो है वो ऑलरेडी yg के अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप फॉर्मेशन में देखें e पावर माइनस x वाला पार्ट, तो e पावर माइनस x जो है वो ऑलरेडी yg के अंदर इंक्लूडेड है, और यहां पे y वाली टर्म जो है वो है ही नहीं। अगर y वाली टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट x का मल्टीपल होना चाहिए, और क्योंकि ये वाला yg जो है ऑलरेडी इसके अंदर है, तो yp वाला ये वाला पार्ट जो है वो yg के अंदर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी x का मल्टीपल होना चाहिए। तो यू कैन से दैट, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे, बट सिंस e पावर माइनस x इन rx, ठीक है, is already in yg, is already included in a yg, so a into e power minus x should be taken as a into x into e power minus x, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में y वाली टर्म इंक्लूडेड नहीं है तो इन दैट केस पॉलिनोमियल की जो सपोजिशन जाएगी वो x का मल्टीपल जाएगी, ठीक है। तो वही केस हुआ यहाँ पे। आल्सो देयर इज नो टर्म ऑफ y in left hand side
say this is the question number 1. Left hand side of our question number 1. So the choice bx plus c must be multiplied with x. तो x का मल्टीपल होगी. इसका मतलब हमारी ये जो yp की सपोजिशन है वो यहां पे गलत हो गई. तो एक्चुअल yp की सपोजिशन क्या होगी अब? Yes, it should be a multiple of a x. तो hence yp क्या होना चाहिए अब यहां पास? a into x into e power minus x plus x times bx plus c. Any doubt? Any query here? No, sir. Okay. एक बार फिर से बता दीजिए. फिर देख लीजिए. Can you repeat this? हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखिए अब yp जो है निकालने के लिए हमारे पास राइट हैंड साइड वाले पार्ट को देखना पड़ेगा. यहां तक क्लियर है? अब राइट हैंड साइड में हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक पॉलिनोमियल टर्म है. अब अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल टर्म है तो इस केस के लिए जो yp की सपोजिशन होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी a इंटू ई पावर माइनस एक्स. यहां तक क्लियर है? और दूसरा पॉलिनोमियल के लिए सपोजिशन होनी चाहिए थी bx प्लस c. ये भी क्लियर है? पर अगर मैं yg को चेकआउट करता हूं तो yg के अंदर ये वाला पार्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना? yg के अंदर ये वाला पार्ट, पहले वाला पार्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. इसका Yes, sir. मतलब दिस पार्ट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ x. दिस पार्ट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ x. सिमिलरली अगर मैं ये वाला पार्ट चेकआउट करता हूं तो ये पार्ट मैंने बोला था कि हमारे पास, क्योंकि ये डिग्री 1 है तो इसलिए हमने सपोजिशन तो डिग्री 1 की होनी चाहिए थी. पर हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में y वाली टर्म इंक्लूडेड नहीं है. तो उस केस में हमने बोला था कि अगर y वाली टर्म इंक्लूडेड नहीं है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमारी जो चॉइस होगी बस उस चॉइस में x का मल्टीपल ले लेना हमने. ठीक है? तो उस चॉइस में x का मल्टीपल ले लेना है. तो इस केस में आपने yp को जो सपोज किया वो लिया a इंटू एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स टाइम्स bx प्लस c. क्लियर? अब उसके बाद करना क्या है? उसके बाद फाइंड द y डैश. y डबल डैश एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C एंड इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स नाउ. उसके बाद इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स. ठीक है? आप कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे. कोएफिशिएंट किस के इक्वेट करेंगे? एक्सपोनेंशियल टर्म के, सेकंड डिग्री इक्वेशन के, एक्स वाली टर्म्स के एंड कांस्टेंट टर्म्स के. तो आपके पास जो आंसर आएगा, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू बी एक्सपेंडिंग इट आउट. तो a की वैल्यू आ जाएगी -1, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और c की वैल्यू आ जाएगी -1. तो यू फाउंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. तो आपके पास yb निकल आएगा माइनस ऑफ x इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस 1/2 इंटू द एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x. तो yp ये निकल आया. और जनरल सोल्यूशन क्या निकल आएगा? जनरल सोल्यूशन इज द y which is equal to be yg plus the yp. तो yg की वैल्यू डाल दीजिए, yp की वैल्यू डाल दीजिए, यू विल गेट अप द आंसर. तो आपके पास फाइनल आंसर निकल आया. एनी क्वेरी? Any query? No, sir. Okay, No. I'm just finally giving you some questions to practice for you. अब सिर्फ मैं yp पूछूंगा आपसे, yp क्या suppose होगा. ठीक है? And just should tell me out. Suppose out. मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसको नोट आउट कीजिए एंड ट्राई टू बी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस. 2y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 3y इज इक्वल टू बी से x क्यूब प्लस x प्लस 1. एक ही ले लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन से हियर इज द y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू बी से
x minus of e power x, and say the another question is the y double dash plus 3 times the y dash plus 2y is equal to be cos of ax plus e power x out there. अच्छा, तो हमारे पास पहले क्वेश्चन में राइट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री 3 का, तो yp क्या सपोज होगा? यस, ले बंद कर दिया। yp सपोज होगा ax ax क्यूब cube प्लस plus bx bx प्लस cx प्लस d, है ना? तो 4 कांस्टेंट आएंगे, इक्वेशन विल बी वेरी लेंथियर, ट्राई टू बी सिंपलीफाइड आउट। अच्छा, अब इस केस में देखिए, इस केस में yp क्या सपोज होगा? एक पॉलिनोमियल है और दूसरा एक्सपोनेंशियल है। यस, इस केस में क्या आएगा? yp इज इक्वल टू बी, इस पार्ट के लिए हो जाएगा ax प्लस b, इस पार्ट के लिए हो जाएगा ax प्लस b, इस पार्ट के लिए c इंटू ई पावर x। तो 3 कांस्टेंट आएंगे यहाँ पे, पर अगर उनमें से कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंक्लूडेड हो रही है yg में, तो x का मल्टीपल ले लीजिएगा। अच्छा, इस पार्ट में yp क्या सपोज होगा? यस, हरी अप। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और दूसरी एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे क्या सपोजिशन आएगी yp की तीसरे केस में? यस, cos x के लिए क्या आएगा? आजा भाई, cos x के लिए आएगा a टाइम्स cos x आजा बंद है प्लस b टाइम्स sin x, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल के लिए c टाइम्स e पावर x। So this is your supposition. So try to be find up the required solutions for these cases, and okay, so thank you for this. In the next lecture we'll be exploring up the next method, which is the method of a variation of parameter. तो इसको थोड़ा try करके आइएगा questions को. Thank you, sir. Thank you. thank you Thank you, sir sir. thank you sir मौज करते। Thank you, sir. Thank you.